بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آپ کا ٹیچر محمد زمان جمالی، ایف جی ماڈل پبلک اسکول سیکنڈ شفٹ واقعات۔ عزیز طلباء، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اپلیکیشن لکھنے کا طریقہ کار سمجھانے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے ویڈیوز میں ہم نے گرامر کے مختلف ٹاپکس پڑھے ہیں۔ آج انگلش فار آل بائی ایم زمان کے پلیٹ فارم سے میں چاہوں گا کہ آپ کو اپلیکیشن فار ارجنٹ پیس آف ورک سکھاؤں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ارجنٹ پیس آف ورک کیا ہے۔ ارجنٹ کا مطلب ضروری، پیس کا مطلب کوئی حصہ آف ورک، کوئی ایک ضروری کام آ گیا ہے۔ پیس آف ورک سے مراد یہاں ہے ایک ضروری کام۔ ارجنٹ کا مطلب بہت ضروری، ٹھیک ہے، ایک ضروری کام۔ تو سب سے پہلے جب ہم اپلیکیشن لکھتے ہیں تو ہم کسے مخاطب ہوتے ہیں؟ اگر ہم اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں تو یقیناً ہم اپنے اسکول کے پرنسپل کو مخاطب ہوں گے، اس وجہ سے ہم لکھیں گے ٹو دا پرنسپل۔ اس کے بعد وہ اسکول کون سا ہے اس کا پورا نام لکھیں گے، ایف جی ماڈل پبلک اسکول سیکنڈ شفٹ واقعات۔ اسٹوڈنٹس، اگر آپ ایف جی ماڈل پبلک اسکول سیکنڈ شفٹ واقعات کے اسٹوڈنٹس ہیں تو یقیناً آپ یہ نام لکھیں گے۔ اگر آپ کسی اور اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ ٹو دا پرنسپل کے بعد اپنے اسکول کا نام لکھیں گے، جس اسکول میں آپ پڑھتے ہیں اسی کا نام لکھیں گے۔ اس کے بعد ایک ضروری چیز ہے سبجیکٹ۔ اب سبجیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مقصد۔ ریکویسٹ فار ون ڈے لیو آن اکاؤنٹ آف ارجنٹ پیس آف ورک۔ ایک دن کی چھٹی کے لیے عرض ہے، ضروری کام کے مناسبت سے یا ضروری کام کے لیے، یعنی بچے کو کوئی ضروری کام ہو گیا، اس وجہ سے وہ ایک دن کی چھٹی چاہتا ہے، اس کے لیے وہ اپلیکیشن دے رہا ہے۔ عزیز طلباء، یہ سبجیکٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی کلاسز میں جو گائیڈ آپ استعمال کرتے ہیں یا کی بک استعمال کرتے ہیں وہاں یہ سبجیکٹ لکھا ہوا نہیں ہے۔ اس سبجیکٹ کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ پرنسپل صاحبان جو ہوتے ہیں ان کے پاس بہت ساری اپلیکیشنز ایک دن میں آتی ہیں، تو ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ یہ دیکھنا کہ کون سی اپلیکیشن کس مقصد کے لیے آئی ہے۔ تو اس لیے اگر ہم سبجیکٹ اوپر لکھ دیتے ہیں تو ان کو بڑی آسانی ہو جاتی ہے، ایک لائن میں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کس مقصد کے لیے وہ اپلیکیشن ان کے پاس لائے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو چھٹی چاہیے، اس وجہ سے آپ اپلیکیشن دے رہے ہیں۔ کوئی ایسا بچہ ہے جس کو فیس معاف کرانی ہے، اس کے لیے اپلیکیشن دے رہا ہے۔ کوئی ایسا بچہ ہے جس کے ساتھ کسی نے کوئی لڑائی جھگڑا کیا ہے تو وہ اپنی داد رسی کے لیے اپلیکیشن دیتا ہے۔ یعنی مختلف لوگ مختلف مقاصد کے لیے اپلیکیشن دیتے ہیں، تو پرنسپل صاحبان کے پاس درجنوں اپلیکیشن ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ سبجیکٹ نہیں لکھیں گے تو ان کو سارا کا سارا اپلیکیشن پڑھنا پڑے گا، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کام کی زیادتی کی وجہ سے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اس اپلیکیشن کو پورا پڑھ سکیں۔ تو جو بھی آپ اپلیکیشن لکھیں اسٹوڈنٹ لائف میں ہیں تو پرنسپل کو لکھیں گے یا ٹیچر کو لکھیں گے، اور اگر آپ اپنے پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو کسی شخص کو یا کسی ادارے کو جب آپ اپلیکیشن لکھتے ہیں تو اس میں سبجیکٹ لکھنا کبھی بھی نہ بھولیں، ضرور لکھیں، تاکہ آپ کا مدعا جو اگلے آفیسر ہے اس سے پتہ لگ جائے، وہ بہت جلدی سے آسانی سے آپ کا مدعا جانے کہ آپ کس وجہ سے وہ اپلیکیشن لکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ریسپیکٹڈ سر یا میڈم، اگر آپ کے پرنسپل میل ہے، ایک مرد ہے تو آپ سر لکھیں گے، اور اگر آپ کا پرنسپل ایک فیمیل ہے، ایک عورت ہیں، تو آپ ان کو میڈم کر مخاطب کریں گے۔ ریسپیکٹڈ کا مطلب ہے عزت مآب، جناب عالی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیچے ہم لکھتے ہیں وتھ ڈیو ریسپیکٹ I beg to state that I have an urgent piece of work with due respect، یعنی تمام تر آداب کے ساتھ، تمام تر عزت کے ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اسٹیٹ کا مطلب یہاں ہے کہ کہنا چاہتا ہوں، that I have an urgent piece of work، مجھے کوئی ضروری کام ہے، therefore you are requested to grant me one day leave 25 اگست 2020۔ اسی وجہ سے آپ کو عرض کی جاتی ہے کہ آپ مجھے ایک دن کی چھٹی عنایت فرمائیں 25 اگست 2020، یعنی جس دن کی وہ بچہ چھٹی لے رہا ہے اس کا ڈیٹ بھی انہوں نے ڈالا ہے، اور اس کے بعد مہینہ اور سال بھی۔ I shall remain thankful to you، میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ نیچے
योर्स ओबीडियंटली, आपका फर्मा बरदार। यहाँ आप जो बच्चा देता है छुट्टी लेने की एप्लीकेशन देता है वो अपने सिग्नेचर करेगा। मोहम्मद ज़मान, यहाँ मैंने अपना नाम लिख दिया है, आपका जो भी नाम होगा आप वो लिखेंगे। उसके बाद आपका क्लास जो होगा, मिसाल के तौर पर मैंने 7th A लिख लिया है, आप 4 क्लास लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7, 8, 9th मैट्रिक जो भी है वो लिखेंगे। उसके बाद अपने स्कूल का नाम लिखेंगे जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं, FG मॉडल पब्लिक स्कूल, 2nd शिफ्ट वाकैंट, तो आप ये भी लिखेंगे। और साथ में एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताता चलूँ कि यहाँ इस कोने पे, यहाँ जहाँ मैं ये कर्सर घूम रहा है, यहाँ पे आप डेट भी लगाएंगे। जब आपके लिए ये एप्लीकेशन में लिख रहा था तो डेट लगाना मैं भूल गया था, इसके लिए मैं माजरत खा हूँ। तो आप यहाँ डेट भी लगाएंगे, यानी राइट साइड से आप डेट भी डालेंगे। अगर 25 अगस्त की छुट्टी है, आप लेना चाहते हैं, यकीनन आप 23 को या 24 अगस्त को वो एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो आप 24 अगस्त 2020 लिखेंगे या 24/8/2020 लिखेंगे। ठीक है। इसी तरह बच्चे एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप इम्तहान देते हैं तो आपको ये कन्फ्यूजन होती है कि भाई एप्लीकेशन के नंबर कितने होते हैं और हमें किस किस पार्ट के कितने कितने नंबर मिलते हैं। तो बेटा ये कन्फ्यूजन आपका मैं ज़रूर दूर करता चलूँ। ये टू द प्रिंसिपल FG मॉडल पब्लिक स्कूल 2nd शिफ्ट वाकैंट, ये दो जब आप मुखातिब होते हैं और इस चीज़ को दुरुस्त लिखते हैं तो यहाँ आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। टोटल 8 मार्क्स होते हैं एप्लीकेशन के, तो यहाँ आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं। उसके बाद जब आप सब्जेक्ट लिखते हैं रिक्वेस्ट फॉर 1 डे लीव ऑन अकाउंट ऑफ अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, इसके भी आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। टोटल कितने हो गए? टोटल आपके 4 मार्क्स हो गए। उसके बाद रेस्पेक्टेड सर या मैडम, और उसके बाद ये जो मद्दा बयान करते हैं इसके भी आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। और उसके बाद आखिर में जो सैल्यूटेशंस होती है, यानी जब आपने एप्लीकेशन पूरी कर ली उसके बाद आप उनसे मुखातिब होते हैं अपनी एप्लीकेशन को ख़त्म करके कि आपका फर्मा बरदार, और फिर आपके सिग्नेचर, आपका नाम, आपकी क्लास और स्कूल का नाम, और साथ में डेट लगाते हैं, उसके भी 2 मार्क्स होते हैं। तो बेटा यानी ये जो 4 हिस्सों में अगर 2 मार्क्स हम डिवाइड करते हैं तो ये टोटल 8 मार्क्स हो जाते हैं। हो सकता है कि आपके जहन में एक और सवाल आए, आप कह रहे हों कि सर ये जो हिस्सा है ये बड़ा है और इसकी हमारे 2 मार्क्स क्यों हैं। तो बेटा मैं आपको बताऊं कि असल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है, जो एप्लीकेशन आप लिखते हैं तो वो जो नोट होते हैं वो जिसे आप मुखातिब करते हैं, आया कि वो आपने दुरुस्त लिखा या नहीं। उसके बाद सेकंड टाइम आपकी इम्पोर्टेंस ये होती है कि जिस मकसद के लिए आप एप्लीकेशन देते हैं क्या वो मकसद आप ऊपर बयान करते हैं। जब आप ये चीज़ें कर लेते हैं तो फिर आपके लिए ज़्यादा मार्क्स आपके इसके बन जाते हैं। उसके बाद आखिर में जो सैल्यूटेशन होती है, जब आप इसे वाइंड अप करते हैं तो आप योर्स ओबीडियंटली, अपने सिग्नेचर, अपने नेम, क्लास, ये वाले क्या आप दुरुस्त तरीके से वो भी लगाते हैं। अगर वो आप लगाते हैं तो उसके आपको मार्क्स मिलते हैं। बाकी ये मद्दा जो बयान करते हैं, पूरी कहानी लिखते हैं कि आपको क्यों छुट्टी चाहिए, क्या मसला था और किस तारीख को चाहिए, तो ये इम्पॉर्टेंट है, यकीनन इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि आपका फेस है। इसका मिसाल मैं आपको यूँ दूँ कि एक शख्स है जिसका सर है, चेहरा है, अगर वो साफ़ सुथरे हैं और उसके पाँव में चप्पल पहनी हुई है और जिस्म में कपड़े पहने हुए हैं तो वो ठीक ठाक और साफ़ सुथरा लगता है। लेकिन अगर उसका चेहरा मैला हो या बालों को कंघी ना हो या उसकी शेव बहुत बड़ी हुई हो तो आपको वो बुरा लगेगा। बिल्कुल इसी तरह से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है आपके इंटरफेस का है कि आप जो एप्लीकेशन है जिसमें आप मुखातिब होते हैं वो चीज़ें आप बयान करते हैं और अच्छे तरीके से करते हैं। आप में बहुत सारे बच्चे यूँ गलती करते हैं कि जब टो के पास द प्रिंसिपल लिखते हैं तो प्रिंसिपल का पी छोटा कर देते हैं, और कई बच्चे ऐसे हैं जो प्रिंसिपल का स्पेल गलत करते हैं, PRINCIPL प्रिंसिपल। प्रिंसिपल एक शख्स है जो एक ओहदे का मालिक है, जिसे प्रिंसिपल होने का ओहदा दिया गया है। एक इंग्लिश में प्रिंसिपल आता है जिसका मतलब है उसूल, PRINCIPLE प्रिंसिपल। तो काफ़ी बच्चे वो स्पेल लिख देते हैं तो वो बड़ा गलत होता है, इस स्पेल को भी नोट कर लें। उसके बाद काफ़ी बच्चे एक और गलती करते हैं कि अपने जो स्कूल का नाम लिखते हैं उसमें भी FG देखें तो उसमें F भी बड़ा होगा और G भी, मॉडल का M बड़ा होगा, P का पब्लिक का P बड़ा होगा, स्कूल का S बड़ा होगा। तो बच्चे यूं करते हैं कि
FG तो पूरा लिख लेते हैं, मॉडल का M छोटा कर देते हैं, पब्लिक का P छोटा कर देते हैं, स्कूल का S छोटा कर देते हैं, साथ सेकंड शिफ्ट के SS ये भी छोटे कर देते हैं, और वह कैंट के W छोटा कर देते हैं, और कैंट का C छोटा कर देते हैं। तो इस तरह अगर आप गलतियां करेंगे तो फिर आपके मार्क्स कटेंगे। ये जो आपको 2 मार्क्स यहाँ के मिल रहे हैं, कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब बच्चों के पेपर चेक करते हैं तो उनको 0.5 मार्क्स मिलते हैं, यानी उनका 1.5 मार्क काटा जा चुका होता है। क्यों? क्योंकि उसने ठीक से उनके जो पंक्चुएशन है वो नहीं की होती। ठीक है, प्रिंसिपल का P बड़ा होना चाहिए, द का T बड़ा होना चाहिए, FG मॉडल पब्लिक स्कूल, तो हर एक लफ्ज़ है उसका पहला हर्फ बड़ा होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह बेटा आखिर में एक और गलती बच्चे करते हैं, अमूमन ये यूअर्स की जगह यूअर लिख देते हैं, यूअर लिख देते हैं, यूअर ओबीडेंटली, जो कि गलत है, यूअर्स ओबीडेंटली होना चाहिए। और कुछ बच्चे एक और गलती करते हैं कि यूअर्स में YOUR उसके बाद एपास्ट्रॉफ लगाकर फिर S लिखते हैं, तो बेटा वो भी गलत होता है। यूअर्स YOURS सिंपल ये लिखना है, यूअर्स ओबीडेंटली। ठीक है, उसके बाद सिग्नेचर और आपके नाम और आपकी क्लास, अगर क्लास का रोल नंबर लिखना चाहें तो वो भी अच्छी बात है, उसके बाद स्कूल का नाम। ये तो आपका हो गया राइट साइड में। लेफ़्ट साइड में आपने क्या करना है कि डेट लगा देनी है। तो बच्चे ऐसा होता है कि जब आप एप्लीकेशन बेटा लिखते हैं तो उसे ना सिर्फ बार बार लिखते हैं ताकि आपको याद हो जाए, और साथ में उससे ज़बानी याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको ग्रिप उस वक्त तक हासिल होगी जब आप इसे बार बार लिखेंगे। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, यही आपको मैं एडवाइस करूँगा कि इस एप्लीकेशन को कम से कम आप 20 टाइम्स 20 मरतबा लिखें, ताकि आप इसे कभी ना भूलें। और हर दफ़ा लिखकर उसके बाद आप देखें जो मैंने एप्लीकेशन लिखी है उसके साथ उसे अब मैच करें, देखेंगे अब क्या गलती रह गई है। ठीक है, जब इस तरह आप करेंगे तो फिर इंशाअल्लाह ताला आप एप्लीकेशन बहुत अच्छे तरीके से लिख सकेंगे, और उसमें आपकी कोई गलती नहीं होगी, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप 8 में से 8 मार्क्स भी हासिल कर सकते हैं। बच्चों, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।